much, and Jai Hind to everybody. Can I be heard? Yeah. Yes, sir. Good. You're perfectly audible, sir. Thank you. Yes. It's a pleasure and an honor for me to be in this seminar, and it's a great chance for me to express myself at the soul level. To me, it is not a presentation. To me, it is the expression of my entire life at the level of soul. I'll go strictly with the topic. The topic given is Chinese aggression and options. Firstly, talking about the Chinese aggression, the problem with me is that where do I start? Whom all China has affected? The list is long. It has affected the entire world. But just looking from the what happened in Eastern Ladakh in the month of May, June, and today, in 1950, in the early start of 50s, Chinese annexed Tibet. It came to Aksai Chin. 62 war was fought in this area. And then there was a line of actual control. And that came on to this month of April 2020. Prime Minister very correctly said on 3rd July from 11,000 feet in Leh, he said expansionism, without naming China, but the world and the China has understood this expansionism went towards China only. US call it revisionist, and we on the ground as a soldier, we call China and PLA as aggressive, provocative, and using diversionary tactics. If you look globally, in South China Sea, it has drawn 9 dotted line with just the aim of aggressive perspective on the territorial issue. Internally, if you look at China, whether it is Tibet, Xinjiang, Manchuria, Inner Mongolia, each place, it has only annexed these places with the aggressive content in that. You know, the basic thought which the Chinese have got is that they are the center of universe. They are the middle kingdom. They are the Chung Ho, and rest everybody is tributary. There's a basic fault line in their very deep thought which is there. Secondly, I have visited China 7 times in the period from 2000 to 2012. I personally was very happy that there was a lot of transformation. Economically, they were coming up, infrastructure was coming up well, but they have misused this economic advancement which they did. With this economy, they only played the game of debt, loan grabbing. They have bought through the wrong route the leadership, the thinking, the journalists, the media in various countries. Example, Spain, Latin America, Pakistan. They have only done this. In fact, they only, in these years, they've been only good in media warfare, psychological warfare, propaganda war. They've been on this lie propaganda throughout. And in the cognitive domain, जो सोच और विचार का क्षेत्र होता है, उसके अंदर में इन्होंने अपनी सॉफ्ट पावर का गलत इस्तेमाल किया है. इनकी इंटेंशंस, नियत गलत थी. इनकी नीति और नियत दोनों गलत थी. और इन्होंने मेंटल सब्जुगेशन करने की कोशिश की है पूरे विश्व को. इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग हब और सप्लाई चेन के अंदर में अच्छा काम किया था इन्होंने. लेकिन इनकी जो सोच थी ऑन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, on the sea routes, on the silk routes, on China-Pakistan economic corridor, that was absolutely ill-intentioned. The biggest aggression that China did, that is the PRC and the PLA, was against its own people. The world has seen that in Tiananmen Square against the protester, they went to the tanks. और तिब्बत में लामा और इनोसेंट लोगों के ऊपर में कितना अत्याचार किया है. सिंजांग के अंदर में इन्होंने किस प्रकार से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है. देखिए 1973 से चाइना और अमेरिका के रिश्ते सुधरने शुरू हुए, कांटेक्ट हुआ, कनेक्ट हुआ, बस उसके बाद तो इन्होंने कॉपी पेस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, they stole the data and technology, and after they had the money with them, they started showing eyes to US itself. They went into the trade war,
they went into the Cold War, and in December 2019, they started this COVID war. Exactly what General Bakshi said, this was a Wuhan virus, started from there. And in coming from there to the status at the moment, अभी स्थिति क्या है? जो 15 जून 2020 को हुआ, उसने पूरा इतिहास बदल दिया है। 15 जून की रात को जो हमारे 20 सैनिकों ने, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर साहब शामिल हैं, उसने इतिहास को बदला है। मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में विस्तार पे। सबसे पहले उन्होंने जो पीएलए का झूठ, फ्रेब, जो एक पखंड था ना, जो एक 1000 साल से जो they were trying to project themselves, that got crashed that night. It was understood by the world and India कि जो पीएलए अपने आप को आर्मी बोलता है, वास्तव में वो आर्मी नहीं है। वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की सिर्फ एक फोर्स है। उनका कम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। जो लास्ट लड़ाई लड़ी थी वो 1979 में लड़ी थी। जनरल बख्शी मेरे इंस्ट्रक्टर थे नेशनल डिफेंस कॉलेज में, और हम इकट्ठे गए थे वियतनाम में इस चीज को स्टडी करने के लिए। और जिस प्रकार से वियतनाम ने चाइना को धूल चटाई थी, वो चाइना को याद है। और उसके बाद कोई कम्बैट एक्सपीरियंस ही नहीं है। माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, कम्बैट एक्सपीरियंस में पीएलए बिल्कुल जीरो है। पूरी दुनिया को पता लग गया, और निकला था यूएस से लड़ाई करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से उसका हर एक प्रोजेक्शन का, उसके अहंकार का, उसकी सच्चाई की पोल खुली, वो पूरा दुनिया ने देखा। अगली बात यह थी कि 15 जून को सबसे बड़ी जो फैटेलिटीज हुई थी, वो थी ट्रस्ट। हम तो चाइना के ऊपर में ट्रस्ट कर रहे थे। हम तो अभी 1 अप्रैल 2020 में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है चाइना इंडिया की, उसके 70 साल पूरे किए थे। हमने तो पिछले 45 ईयर्स या पिछले 53 ईयर्स के ऊपर में बॉर्डर और एलएसी के ऊपर में शांति बनाई थी। लेकिन उस रात को ट्रस्ट का चकनाचूर हुआ। उस रात को यह पता लगा कि पीएलए और चाइना छल कपट, धोखा, ट्रेचरी, डिसेप्शन, उन्होंने जितनी भी संधियां थी, एग्रीमेंट थे, प्रोटोकॉल थे, प्रैक्टिसेस थी, एकदम उसको चकनाचूर और डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर किया। और उसके बाद में जो 3 जुलाई को आपने देखा है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने बहुत इतना सुंदरता से उन्होंने कहा है कि अगर हमको शांति चाहिए तो शक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। और वो कहां कहा? उन्होंने कहा जवानों के बीच में खड़े होके, देखिए अगर भारत को शांति चाहिए, भारत को विकास चाहिए, तो ये जो चाइना का विस्तारवाद है और ये जो चाइना का धोखा है, इससे लड़ने की शक्ति चाहिए। ये सबसे बड़ा मैसेज था। दुनिया तो सोचती रही कि ये भारत वाले बहुत सॉफ्ट हैं। उनको ये नहीं पता लगा कि ये बांसुरी के पीछे में जो सुदर्शन चक्र होता है ना, वो अलग नहीं है, वो सेम चीज है। अभी की जो हालत है वो है टेंशन की बॉर्डर के ऊपर में। अभी की हालत है प्रिपरेशन और रियलाइजेशंस की, अलर्टनेस की, और हमारे भारतीय सेना की तैयारी। इसके अलावा मीटिंग्स हैं तीनों लेवल के ऊपर में, मिलिट्री लेवल के ऊपर में। पहले कभी भी हमने लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर मीटिंग नहीं किया, लेकिन 3 बार इस मीटिंग को कर चुके हैं। और दूसरा जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर में वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंसल्टेशन, और तीसरा है स्ट्रेटेजिक रिप्रेजेंटेटिव लेवल, जो एनएसए लेवल और स्टेट काउंसलर चाइना के हैं उनके लेवल के ऊपर में। देखिए ये जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई है, जो 22 जून को और 30 जून को हुई है, 12 से 14 घंटे की मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में बहुत क्लियर, बेटुक, बेबाक, स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम चाइना के लोकल कमांडर्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी जो स्थिति है कि पूर्ण भारत का हर नागरिक इस चाइना के थ्रेट, चैलेंज और लड़ाई के अंदर में एकजुट हो गया है। चाहे वो बाइकॉट हो, चाहे वो सरकार का चाइनीज प्रोजेक्ट्स को बैन करना हो, बार करना हो,
जहां भारत की तैयारी, जहां पूरा विश्व को भारत के साथ में खड़ा होना, ये अभी स्थिति है। और देखिए, मैं तो कभी ऐसे सोचता हूं, चाइना भारत का प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हम पहले इंग्लिश में बोलते थे, डिप्लोमेसी से बोलते थे, गुड गुड सेंटेंस यूज करते थे, वो पूरा 15 जून को खत्म। अभी इसके बाद में जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनेंगे वो हम बनाएंगे। और अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है सीसीपी। ये कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। सबसे पहला कोविड, दूसरा चाइना और तीसरा पाकिस्तान, ये है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस जो लेक्चर का आपने दूसरा हिस्सा रखा है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। आपने कहा है ऑप्शंस क्या हैं, समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। लेकिन उससे पहले हमको वी मस्ट रियलाइज कि हम क्या हैं, भारत क्या है, भारत की सेना क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जिन्होंने 15 जून में 20 जवानों की, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर साहब शामिल हैं, आपको मालूम है कमांडिंग ऑफिसर क्या होता है? जनरल बख्शी और मैं, हम दोनों पैदल सेना के हैं, दोनों इन्फेंट्री के हैं। अगर मेरे कमांडिंग ऑफिसर को कोई ऐसे हाथ दिखा देना, उसका हाथ काट दूंगा। अगर मेरे कमांडिंग ऑफिसर कोई आंख दिखाए ना, मैं उसकी आंख अपने हाथ से निकाल दूंगा। और मैं बोल रहा हूं आत्मा के लेवल के ऊपर में, मैं हिंदी और इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं। ये मैं एक सैनिक के भावना को प्रकट कर रहा हूं। तो हमको ये रियलाइज करने की जरूरत है, पहली बात, कि जो भारत का रुख है ना, जो भारत का सरकार का पॉलिटिकल लेवल है, वो बदल गया है। अभी भारत के सरकार का जो पॉलिटिकल लेवल है, वो 3 आपको रियलाइज करना पड़ेगा। पहला है हार्ड डिसीजन लेते हैं, बालाकोट, 5 अगस्त, आर्टिकल 370, हार्ड डिसीजन। दूसरा है रिजॉल्व, रेजोल्यूट डिसीजन। और तीसरा है नेशनल विल। अगर डोकलाम में स्टैंड ऑफ था तो एक नेशनल विल था। 73 दिन चला, लेकिन झुके नहीं, पीछे नहीं हुए हैं। भारत की रेड लाइंस बदल गई हैं। अभी भारत ने 5 अगस्त को पार्लियामेंट से कहा है कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान वापस लिया जाएगा, यह है रेड लाइन। 6 अगस्त को कहा कि एक्साइथिन वापस लिया जाएगा, यह है रेड लाइन। नवंबर 2019 को सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप इशू किया है, और जो मैप है यूनियन टेरिटरी ले का, उसको आप थोड़ा बारीक से देखिए। उसके अंदर एक्साइथिन भी शामिल है। उसके अंदर में हमारा अफगानिस्तान के साथ 136 किलोमीटर का बॉर्डर है। चाइना और पाकिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है। अगर बॉर्डर नहीं है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्कुल नामंजूर है। भारत सेना का जो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल है, वो अलग है। आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए। 67 के बाद में आज तक, इस क्षण तक, इस पल तक भारतीय सेना ने शौर्य, साहस और बलिदान का क्या परिचय दिया है। अपनी वर्थ पहचानिए आप। देखिए, भारत का जितने भी एलिमेंट ऑफ पावर हैं, एलिमेंट ऑफ वॉर हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मीडिया, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के अंदर मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की बात अलग करूंगा। और जो हमारी पब्लिक है वो बिल्कुल बदल चुकी है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। देखिए, ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है, जब विषय होता है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, तो इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए तब तक टाइम नहीं है जब तक रिस्पॉन्स और कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो जाता है। जो इंटरनल पॉलिटिक्स का जो सवाल है, शक है, शंका है, डाउट है, वो डेमोक्रेसी के तहत बाद में पूछे जा सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो खत्म होने दीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है, जो शक शंका पूछते हैं कि क्या ये चाइना के प्रॉक्सी वॉर के हिस्से हैं, क्या इन्होंने चाइना से पैसे लिए हुए हैं, क्या ये चाइना की सोच विचार के शिकार हैं, क्या ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, क्या इनका कोई धर्म नहीं है? देखिए, भारत सेना ने हमको 2 धर्म सिखाए हैं, एक तो राष्ट्र धर्म और दूसरा कर्मो परमो धर्म। मेरा एज ए सैनिक
सिर्फ वही धर्म है, कर्म और राष्ट्र धर्म, बस, और कोई धर्म नहीं है। और जब देश की उम्र में चुनौती है तो कैसे हो सकता है हमारे परिवार का कोई और धर्म? देखिए, 15 जून के बाद में जो चाइना ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, उसके बाद भारत का धैर्य टूट चुका है और जो भी थ्रेशोल्ड है उसके अभी हम पार चले गए हैं। इसको मद्देनजर रख के अभी मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं कुछ ऑप्शंस और कुछ सोल्यूशन। देखिए, कुछ एक इमीडिएट सोल्यूशन है। पहली बात तो हमारे को चाइना के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हमको अपने फॉरवर्ड एरियाज के अंदर में एकदम अलर्ट, प्रिपेयर्ड और रेडी रहना पड़ेगा। हमको हर एक चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये जो अभी पीछे भी हट रहे हैं चाइना वाले, ये स्टेज बाय स्टेज, फेज बाय फेज वेरीफाई करना पड़ेगा। हमने बता दिया है चाइना को कि आपके लोकल कमांडर्स के ऊपर में हमको कोई ट्रस्ट नहीं है। दूसरी बात है, लेट्स रेज द लेवल नाउ। ये इंसिडेंट से बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या सोल्यूशन। सबसे पहले जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, प्लीज नोट करना, ये इंडो चाइना बॉर्डर पुलिस नहीं है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इसका जो ऑप कंट्रोल है, ऑपरेशन कंट्रोल है, ये आर्मी को देना चाहिए, क्योंकि अभी एलएसी और बॉर्डर एरिया में जो स्थिति है वो सेंसिटिव है और इसलिए ये जरूरी है कि भारत सेना, मेरे को ये मालूम है कि जो सुन रहे हैं उनका सरकार और लीडरशिप के साथ में बहुत अच्छे नाते हैं, तो आप प्लीज उनको बताइए कि आईटीबीपी का ऑप कंट्रोल फौज को दे देना चाहिए। दूसरी बात, लद्दाख की और भी रेजिंग करनी चाहिए उनकी बटालियंस की। देखिए, ऐसी है कि अभी जो लद्दाख के इलाके में, उस ले के यूनियन टेरिटरी है, उस इलाके में जो मैंने रेड लाइन्स आपको बताया था, गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चीन, अभी काम बहुत बाकी है। अभी हमको अपना कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल बढ़ाने की जरूरत है। अगली बात यह है, ये जो मई, जून, जुलाई जितनी एक्टिविटीज थी ये एलएसी के ऊपर था, तो एलएसी क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज चाइना के साथ करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक पर पिछले 20 साल पे हूं, एलएसी क्लैरिफिकेशन, बॉर्डर और चाइना के ऊपर में। मैंने 2 साल स्टडी लीव लिया था आर्मी से इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यू का रिसर्च करने के लिए, और मैंने ताइवान में जाकर पीएलए और पीआरसी के ऊपर में भी अध्ययन किया, उनके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। वॉशिंगटन में भी जाकर इस चीज के ऊपर अध्ययन किया। ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम भी गया मैं इसी पॉइंट के लिए। तो उस बलबूते पे कहना चाहता हूं कि 3 स्टेप हैं। एक, एलएसी क्लैरिफिकेशन करें चाइना के साथ, जो हमने नहीं कर सके अभी तक। और मैं 2002 में चाइना गया था, बीजिंग में, इसी इलाका के मैप्स को एक्सचेंज करने के लिए। डिफरेंसेस ज्यादा थे इसलिए एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन उस एक्सरसाइज को दोबारा शुरू करने की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री जी 2015 में चाइना गए थे तो उन्होंने कहा था वी मस्ट रीस्टार्ट दिस एक्सरसाइज ऑफ एलएसी क्लैरिफिकेशन, लेकिन चाइना ने उसका रिस्पॉन्स दिया नहीं था। अभी जरूरी है कि वो एक्सरसाइज को हम दोबारा शुरू करें। दूसरा, बॉर्डर जो क्वेश्चन है, इशू है, डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। 72 साल हो गए, अपने आप को कहते हैं सिविलाइजेशन, भारत और चीन। क्या सिविलाइजेशन एक प्रॉब्लम को 72 साल ठंडे बक्से के अंदर डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जरूरी है इसको दोबारा करना चाहिए। स्टेट जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एनएसए का लेवल है, उसके ऊपर में 22 मीटिंग कर चुके हैं हम, उसको आगे ले जाना पड़ेगा और बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरी बात है, जितने भी हमने एग्रीमेंट किए थे 1993, 1996, 2005, 2013, वो तो सब 15 जून को पता नहीं, जैसे कागज होता है ना, उसको ऐसे बिछोड़ देते हैं, वो हुआ उस रात को। तो अभी जरूरी है कि नए एग्रीमेंट बनाया जाए और असलियत को मद्देनजर रखकर बनाया जाए। ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि चाइना प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में। तो हमारा ये जरूरी है हमारे लिए कि हम मिड टर्म के अंदर में, ये जो मैं बता रहा था इमीडिएट और मिड टर्म के अंदर में, हमारा जरूरी है कि हमारा जो कोर नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिकलिटीज हैं, उनको पहचानें
अपना नैरेटिव बनाएं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसकी बैकअप होनी चाहिए डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस से, मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर। प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से ये शुरू किया था, मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर। उनके दिमाग के अंदर में जो मुगल, ब्रिटिश और एक माइंड सेट है, वो आगे नहीं जाने दे रहा है हमको। वो अभी भी हमारी रुकावट है। हमारे जो पीएसयूज हैं, हमारे कुछ डीआरडीओ के कुछ हिस्से हैं जो इस प्रोग्रेस के अंदर में ऑब्स्टिकल है। पहचानना पड़ेगा उनको, हटना पड़ेगा उनको। ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे देश की उन्नति के बीच में बाधा नहीं बन सकते हैं। हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी प्रकार करना चाहिए। हमने डिसाइड किया था 73 स्ट्रेटेजिक रोड हैं, जिसमें से 61 कंप्लीट हुई हैं। ये जो दरबुक श्योक डीबीओ की सड़क बनी है 255 किलोमीटर, 37 ब्रिजेस, और जो कल ही रक्षा मंत्री जी ने 6 ब्रिजेस का उद्घाटन किया है। ये जो गति है, इसको पकड़ना पड़ेगा। हमारा डिफेंस बजट और हमारा कैपिटल बजट किसी ब्यूरोक्रेट्स जहां छोटी समझ का गुलाम नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आपको प्रधानमंत्री जी ने 11,000 फीट के ऊपर में जाकर हाई एल्टीट्यूड एरिया से, जहां ऑक्सीजन कम है, भारतीय सेना के साथ खड़े होकर कहा है कि शक्ति होगी तो शांति होगी, शांति होगी तो विकास होगा। यह हमको समझना जरूरी है। देखिए, अभी तो बाइकआउट किया है, बैन किया है, और न जाने कितने भाई लोग पूरे विश्व से इकट्ठे हमारी तरफ आ गए हैं। आपने देखा है किस प्रकार क्वाड्स, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भी, आपने देखा किस प्रकार 130 से ज्यादा देश चाइना के अगेंस्ट खड़े हो गए कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए। आपने देखा है किस प्रकार हांगकांग के इश्यू के ऊपर में 27 देशों ने बोला है कि हांगकांग में अत्याचार बंद करो। आपने देखा है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर में 15 देशों ने बोला कि ताइवान एक अच्छा सिस्टम है, उन्होंने कोविड के टाइम में अच्छा काम किया है, उनकी टेक्नोलॉजी 5G की अच्छी है, वियतनाम अच्छा है। अभी तो ब्रदरहुड अलग ही लेवल के ऊपर में चल रहा है। हमारे अंदरूनी इलाके के अंदर में इकोनॉमी, मैन्युफैक्चर, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर, स्पेस, इनको उभारना पड़ेगा। अभी हमको अपने आप को एक रीसेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम एकजुट हो जाते हैं, जो हम पुलवामा के बाद में हुए थे, अगर हम एकजुट हो जाते हैं, उन 20 ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव जिन्होंने 15 जून गलवान में एक इतिहास, मिलिट्री हिस्ट्री का एक स्वर्ण पृष्ठ लिखा है, तो मेरी आपसे ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, जो चाइना का झूठ, फरेब, असलियत 15 जून को पता लगा है, ये 130 करोड़ भारतीय को मालूम होना चाहिए। पहली बात, जो चाइनीज की वर्नरेबिलिटीज हैं, जो उसकी कमजोरियां हैं, ये पूरे विश्व को मालूम है, लेकिन पूरे भारत को मालूम नहीं है। क्योंकि क्या बदलना है हमको बदलना है सोच और विचार। हमको पता करना है हमारी सेल्फ वर्थ क्या है। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं। मैं मेजर था, यूनाइटेड नेशन मिशन में ईरान में गया, तो वहां पे मेरा जो बॉस था वो ब्रिगेडियर था स्वीडन का। तो उसने एक दिन मेरे को बोला, और इस जो मिशन था ईरान इराक का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का, उसके अंदर में 10 हम भारतीय थे। तो वो मेरे को ब्रिगेडियर साहब कहता है कि मेजर गुरमीत, if this is the standard of 10 Indian officers, why India is not a superpower? तो मेरे को पता नहीं लगा मैं उसको क्या बोलूं। तो मैंने उसको बहुत श्रद्धापूर्ण तरीके से कहा, सर, we have had 800 years of subjugation by Mughals and British, but now we are independent and we will evoke that self-worth and self-value in the world hereafter. You keep seeing
फिर मैं अपने सीनियर के पास में गया जो एक कर्नल साहब थे, मैंने उसको बोला सर वो गोरा वो ब्रिगेडियर मेरे को पूछ रहा था कि इंडिया सुपर पावर क्यों नहीं है। वो कह रहा था कि आपके 10 ऑफिसर ऐसे हैं तो आपका पूरा भारत सुपर पावर क्यों नहीं है। तो उसने बोला कि बाद में बात करेंगे। हमने बाद में बात भी की, लेकिन बाद में यह पता लगा कि हम अपने घर में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, फ्यूडलिज्म है और एकजुट नहीं होते हैं। तो मेरा ये आपसे प्रार्थना है कि हम सब ज्वाइंटेड वननेस, और जब बात होती है नेशनल सिक्योरिटी की तो ये जयचंद के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए आखिर में एक बहुत सोच से मैं ऐसा सोचता हूं कि गहरी सोच से सोचता हूं कि भारत और चीन दो अनब्रोकन सिविलाइजेशन हैं, हजारों साल से हैं। हम लोग 2.7 बिलियन हैं और पूरे विश्व में सिर्फ 7 बिलियन ह्यूमन बींग्स हैं। हमारे दोनों की जो जीडीपी है पूरे वर्ल्ड की 20% जीडीपी है, लेकिन चाइना ने इतनी गलतियां और ब्लंडर्स कर रहा है कि वो इस सिविलाइजेशन के ओहदे से थोड़ा हट रहा है। शर्म आती है चाइना को सिविलाइजेशन कहते हुए जब वो मसूद अजहर के लिए विश्व के अंदर में खड़ा हो जाता है। शर्म आती है जब पाकिस्तान जैसे फेल्ड और रोग स्टेट को प्रॉक्सी बनाता है। शर्म आती है जब अपने आप को 10 फीट टॉल बोलता है, लेकिन है तो सिर्फ 4.5 फीट टॉल। 2 फीट चाइना का, 1 फीट पाकिस्तान का, 1 फीट नॉर्थ कोरिया का और आधा फीट नेपाल का। बोरो किए हुए प्रॉक्सी 2.5 फ्रंट पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और नेपाल से चला विश्व से पंगा लेने। समझ आना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए उसको। देखिए मेरे विचार से चाइना का खेल खत्म हो गया है। चाइना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उस उल्टी गिनती के अंदर में सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट था वो तो था ही दिसंबर 2019 कोविड वुहान, और सबसे बड़ा उसके बाद जो कैटलिस्ट था जिसके ऊपर में मेरे को गर्व है वो है 20 जवानों की बलिदान, वो है 15 जून, वो है गलवान। आखिर में मैं एक मैसेज देना चाहता हूं तहे दिल से, आत्मा के स्तर पर हर एक भारतीय को, प्लीज कृपया जो चाइना का मिथ है, जो झूठ है, जो उसने मन गढ़ंत डिल्यूजन पूरा विश्व को बताया था, उसको तोड़िए। दूसरा है अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। तीसरा है कि जो चाइना की कमजोरियां हैं, चाइना की वर्नबिलिटीज हैं, उनको पहचानिए, आप रिसर्च कीजिए इसके ऊपर में। और आखिर में मैं कहूंगा कि अभी समय है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, हमको हरेक भारतीय को और भारत को रीसेट करना चाहिए, अपने आप को मैन्युफैक्चर, सप्लाई चेन, नेशनल सिक्योरिटी की तरफ लेना चाहिए। और एक एब्सोल्युटली ऐसे बोलते हैं वाणी को विश्राम दूंगा, उस पैराग्राफ के अंदर में मैं बोलूंगा सम फूड फॉर थॉट। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या चीज है। उनको नहीं मालूम है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बॉर्डर का क्या डिफरेंस है, और एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के साथ में, उसका क्या डिफरेंस है। तो आप प्लीज इसका अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट है इंट्रूजन और ट्रांसग्रेशन का क्या फर्क है। नेक्स्ट, स्टेटस को एज रिलेटेड टू एलएसी, वो क्या चीज है। जिनको नहीं पता होता है वो फिर अपना गलतियों से कब्जा बोलते हैं, वो फिर गलत गलत बात करते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। आखिर में मैं कहूंगा चाइना के जो प्रोपेगेंडा वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉर है, उसका शिकार मत बनिए। और मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि 2 पिलर हैं दिमाग के अंदर में। एक पिलर है जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का है, जो सुनहरा चैप्टर है, और दूसरा है जो भी आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, रिसेट, और जो अभी भारत करने वाला है। इन दोनों को प्लीज मिलाइए और एक नए भारत की तरफ चलते हैं। मेरे को तो आज बहुत मजा आया है, क्योंकि
मैंने तो अपने आत्मा से बोला है और मैं उसी आत्मा का सहारा लेकर आप सबकी आत्मा को कहना चाहता हूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।